नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। माइक ऑन है और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। 40 मिनट तक फोन पर बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई है। एक ऐसे समय में जब दुनिया में एक युद्ध चल रहा है और एक ऐसे समय में जब भरोसे की कमी है, उस समय में डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं और दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत तकरीबन 40 मिनट तक चलती है। अमेरिका ईरान वार्ता के बाद मोदी ट्रंप की ये अहम बातचीत है। इसे इस तरह से देखिए कि अमेरिका और ईरान के बीच एक वार्ता हुई, पाकिस्तान के अंदर वो वार्ता विफल हो गई, वो फेल हो गए टॉक्स, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने पहले भी कहा, एक ऐसे समय में जब युद्ध चल रहा है, जब भरोसे की कमी है, तो अमेरिका अपने रिलायबल पार्टनर भारत से बात कर रहा है। 40 मिनट तक बातचीत हुई है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच। पिछले एक महीने में ये दूसरा मौका है जब दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने फोन पर बात की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, भारत अमेरिका के संबंधों पर भी बातचीत हुई है। मैं आपको यह भी बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका से भारतीय प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। यह भी खबर हमारे पास आई है। मैं आपको बताऊं, ट्रंप मोदी बातचीत पर एनडीटीवी पर अमेरिकी राजदूत ने खुद आकर बयान दिया है। किसी और नेटवर्क के पास ये बातचीत नहीं है। ये बड़ी खबर है। सर्जियो गोर, जो कि अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, और शांति वार्ता में भारत की भूमिका अहम रह सकती है, ये कहा है सर्जियो गोर ने। अगले महीने मार्को रूबियो भारत आने वाले हैं और कई बड़े मुद्दों पर ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत होगी। जरा आपको सुनवाते हैं क्या कहा है अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने। All right, well, joining us now, the U.S. Ambassador to New Delhi, Mr. Sergio Gore. Mr. Gore, thank you so much for speaking to us. It's a very, very important day today. Prime Minister Modi, President Trump have had an opportunity of speaking to each other. Could you tell us how that conversation went? Yes, they just got off the phone actually a few minutes ago. So I was late to our event because of that very important phone call. Look, the President keeps the Prime Minister updated regularly, and so without getting into too many private details, the President gave him an update on what is happening in the Middle East, along with some of the big ticket items that we have happening in Washington between the United States and India. I just got back from Washington, where I met virtually the entire cabinet, Commerce, Secretary of Treasury, USTR on trade, the Department of War, and of course the President. And so we have a lot of big ticket items, and so you might see some news over the next few days, but it's not for me to give you tonight. Do you see India having a possible role in the peace process? I think the whole world can have a role in the peace process, and that includes India, of course. The President welcomes everybody who wants to be involved in this. Yeah. And sir, that's important. The President welcomes anybody who wants to be a part of it. How do you see India potentially being a part of it? Well, that would be a question for India, to be honest. But it's one of those things. Look, right now there's only one country that is holding the Strait of Hormuz hostage. And so, of course, we welcome all parties to encourage that to reopen. These are international waters. No country should be able to hold and blockade the whole world. And do you see President Trump coming to India soon? I will tell you this, that Secretary Rubio will be here next month. Yes. And so we're thrilled that he'll be coming first. Are you optimistic, sir, of the war in West Asia coming to a close soon? What are your views, given the fact that we're all impacted one way or the other? I think the United States was actively negotiating, and so we'll see what happens. But the sides continue to engage. And just a final question, just so that I understand you potentially see India having a role, in the peace process. Would that be correct for me to phrase? I think that's for India to decide. However, the United States would welcome their involvement, as they have welcomed many other countries. Thank Ambassador Gore, thank you very much. So much. और हमारे सहयोगी आदित्य राजकौल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, ये बातचीत कितनी अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध का समय है और अभी अभी इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुई हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फोन उठाते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री से बात करते हैं। जी, बहुत ही अहम बातचीत हुई है। लगभग एनडीटीवी पे ये एक्सक्लूसिवली सर्जियो गौर ने बताया है, कंफर्म किया है मेरे कलीग विष्णु सोम को, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि All right, well, joining us now, भूमिका शांति प्रक्रिया के लिए, और शांति प्रक्रिया जो चल रही है पूरी, इसमें भारत का योगदान क्या रहेगा, उसमें पूरी तरीके से वो स्वागत करेंगे उसका। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो मई में भारत आएंगे, और हो सकता है कि ट्रंप भी उसके बाद आए, लेकिन पहले मार्को रूबियो यहाँ पर आएंगे। और 40 मिनट की जो बातचीत हुई है ट्रंप और मोदी के दरमियान,
उस पर डिटेल में बातचीत हुई है। और ये बातचीत जो है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे भी हुई है, और उसके साथ ही जो भारत और अमेरिका के बीच में संबंध है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ट्रेड डील कैसे की जाए और डिफेंस डील्स कैसे की जाए, इस पर लगभग 40 मिनट तक बातचीत की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक डिटेल्स दी कि पिछले 45 दिन में क्या हुआ। और आपको बता दूं कि ये दूसरी वार्ता है भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में। तो सर्जियो गौर का कहना यह है कि ट्रंप ने डिटेल में जो सिचुएशन है वो प्रधानमंत्री मोदी को समझाई, और अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भारत के लोग अमेरिका को प्यार करते हैं, ट्रंप को प्यार करते हैं। तो बहुत ही मुझे लगता है कि अहम भूमिका अभी इस फोन कॉल की रहेगी, भारत और अमेरिका को साथ लाने की। और अगली जो प्रक्रिया ये रहेगी कि डिप्लोमेटिक तौर पर रिश्तों को कैसे और सुधारा जाए और ट्रेड डील को कैसे मजबूत किया जाए। क्या भारत का योगदान पीस प्रोसेस में रहेगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी भी चर्चा जारी है, नेगोशिएशन जारी है, और तभी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को साथ लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ले जाना चाहते हैं शांति प्रक्रिया के लिए, और अमेरिका और भारत के जो दरमियान रिश्ते हैं उसको आगे कैसे लिया जाए। बिल्कुल आदित्य, मैं जो बात हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। युद्ध के हालात को लेकर आपको हम अलग अलग जानकारियां समय समय पर देते हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि सर्जियो गौर ने कहा है कि शांति वार्ता में भारत की भूमिका हो सकती है। आपको यह बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 40 मिनट की बातचीत हुई है। 40 मिनट में एक अच्छा खासा खाका खींचा जा सकता है। किन किन मुद्दों पर बात हुई होगी, किन बिंदुओं पर बात हुई होगी, आप जानते हैं। युद्ध पर बात हुई होगी, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात हुई होगी। अशोक सजनार जी जुड़ गए हमारे साथ, फॉर्मर एम्बेसडर सजनार, बताइए जरा सा, आपको क्या लग रहा है एक ऐसे समय में अमेरिका अपने रिलायबल पार्टनर, भरोसेमंद अगर साझेदार को फोन मिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद में वार्ता फेल हुई है, इसके मायने क्या है? जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की और अब हम जानते हैं जो ट्रंप 1.0 में बहुत अच्छा दोनों के संबंध थे, बहुत अच्छी दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। अब ये देख रहे हैं जो उनका दूसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें थोड़ी ऊंचाई नीचाई आ गई है, क्योंकि जब ऑप सिंदूर हुआ उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना मैंने वो रुकवाया है वगैरह, उसकी वजह से थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में भी संबंधों में कुछ खटाई आ गई है। परंतु अब मेरे विचार से हालात ऐसे हो गए हैं, पूरे विश्व के हालात ऐसे हो गए हैं जो भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। भारत की एक यहाँ पर सभी देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ तो है ही, और खाड़ी देशों के साथ। तो जो भी इसमें जिसे कहा जाए मेन एक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, सभी के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। तो इसमें भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि सभी को विश्व में चाहिए, भारत को चाहिए, अमेरिका को चाहिए, खाड़ी देशों को चाहिए जो जल्द से जल्द शांति स्थापित हो। और उसके लिए मेरे विचार से ये जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं जब वो रोज कोई ना कोई अल्टीमेटम जरूर दे रहे हैं ईरान को लेकर। अब जिस वक्त उन्होंने नाकेबंदी की है, हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, उस ब्लॉकेड को लेकर एक धमकी चीन से आ गई है और एक धमकी एक तरह से रूस से भी आई है, जब वो कह रहे हैं हमारा अपना करार है, आप कौन होते हैं हमें बीच में रोकने वाले इस रास्ते से हमारे शिप्स निकालने में। ऐसे में मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि कितना जरूरी भारत हो जाता है अमेरिका के लिए। देखिए, बहुत जरूरी है ये। देखिए, जो चीन का कहना जो हमारा करार है, परंतु देखिए कोई बायलैटरल एग्रीमेंट किसी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर तो उसका दर्जा नहीं हो सकता ना। अब जो ईरान का है, ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून को परे रखकर वो अपनी वहां पर चला रहा है। देखिए, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इंटरनेशनल वाटर्स है, ग्लोबल कॉमन्स है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी में, उसके अंतर्गत उसका वहां पर आवागमन होता है कश्तियों का, जहाजों का। परंतु ईरान कहता है जो मेरे खाली जहाज जाएंगे और जो जाएंगे उनसे मैं या तो कुछ को नहीं जाने दूंगा, जिनको मैं जाने दूंगा उनसे मैं
मुआवजा वसूल करूंगा, उनसे मैं टैरिफ वसूल करूंगा। तो ये तो किसी उसमें नहीं लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय कानून में। तो अगर उसको पूरा करने के लिए मेरे विचार से अमेरिका जो कर रहा है वो भी ठीक नहीं कर रहा है, परंतु सबसे पहले इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको रोकने की जो गलती। बिल्कुल एम्बेसडर, आप जो बात कह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त वो जगह बनी हुई है जहां से एक और नया युद्ध शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 40 मिनट की बातचीत हुई है, और एक ऐसे समय पर जब अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है। कहां की कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ट्रंप ने घेराबंदी कर दी, और ये घेराबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने फाइटर जेट्स भेज कर की है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज कर की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है, और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरह से अमेरिका ने पूरी तरह से ब्लॉकेड कर दिया, यानी यहां कोई जहाज गुजर नहीं पाएगा। तो एक नई जंग जो पानी में शुरू हुई है क्या, ये सवाल आज पूछ रही हूं। अमेरिका ने अपने 16 युद्धपोत यहां पर तैनात कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगता है जैसे हॉर्मुज को चक्रव्यूह में घेर दिया है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के सपोर्ट शिप्स भी इस घेराबंदी में शामिल है। अब ये हॉर्मुज है, और इस हॉर्मुज में आप देखिए कि जो भी टैंकर्स निकलेंगे वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देखिए एक तरफ अमेरिका के झंडे वाले जहाज, उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके युद्धपोत, उनके हेलीकॉप्टर्स सब तैनात हो गए। यानी अगर यहां से निकलना है आगे तो आपको अमेरिका की रजामंदी चाहिए, और अगर अमेरिका रजामंदी नहीं देगी तो सारे तेल के टैंकर वहीं फंस कर रह जाएंगे। और यही हो रहा है। अमेरिका ने यहां पर नाकेबंदी कर दी है। वो कैसे की है, जरा इसे समझिए। अमेरिका ये बता देना चाहता है कि हॉर्मुज पर भले ही अभी ईरान का कंट्रोल हो, लेकिन वहां होगा वही जो वॉशिंगटन चाहेगा। अमेरिका ने इसके लिए अपनी ताकत भी दिखा दी है। हॉर्मुज के आसपास अमेरिका ने इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा खड़ा कर दिया कि दुनिया को नए युद्ध की आशंका सताने लगी। आपको बताती हूं कि वो बेड़ा है क्या जो अमेरिका ने वहां पर तैनात किया। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात कर दिए हैं। इनमें से एक है, इसको जूम आउट कर लीजिए प्लीज। इनमें से एक है एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन। ये न्यूक्लियर पावर से चलता है और लंबे समय तक समंदर में रह सकता है। इसी पर करीब 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। ये सब कुछ हॉर्मुज में है। आप सोचिए, हॉर्मुज के पास तैनात अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये अमेरिका का सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर 75 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो हॉर्मुज पहुंचने वाला है। इस पर भी करीब 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। अब आप सोचिए, इसके अलावा अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 2 एम्फिबियन असॉल्ट शिप्स तैनात किए हैं। एम्फिबियन यानी जो पानी में भी चल ले और जमीन पर भी। इनमें एक यूएसएस ट्रिपली है जो कम पानी वाले इलाके में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूएसएस ट्रिपोली पर 20 से अधिक F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट्स तैनात हैं। अमेरिका का एक और एम्फिबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बॉक्सर भी हॉर्मुज के पास है। इस पर F-35B लाइटनिंग समेत 30 से अधिक फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। ये सब अभी तो शुरुआत है जो मैं आपको बता रही हूं। ये सब हॉर्मुज की नाकेबंदी में लगा है। यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर पर 4400 से ज्यादा मरीन्स हैं, यानी उनके अपने कमांडोज। इनके अलावा अमेरिका ने 3 लिटरल कॉम्बैट शिप्स भी हॉर्मुज के पास पहुंचा दिए हैं। ये तट के पास खाड़ी के उथले पानी में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। बेहद संवेदनशील AQS-20 सोनार से लेस ये कॉम्बैट शिप्स बारूदी सुरंगों का पता लगाने में भी कारगर होते हैं। इसीलिए यहां लगाया गया क्योंकि ईरान ने यहां पर कई माइंस बिछाई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने हॉर्मुज के पास 2 पनडुब्बियां भी तैनात कर दी हैं। ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए इन्हें टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल से लैस किया गया है। अमेरिका ने इसके अलावा हॉर्मुज के पास 16 डिस्ट्रॉयर्स भी तैनात कर दिए हैं। ये तेज रफ्तार डिस्ट्रॉयर टॉमाहॉक जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। अमेरिका ने जापान से 2 माइन स्वीपर्स भी हॉर्मुज के पास भेजे हैं। माइन स्वीपर्स यानी जो माइंस लगे हुए हैं पानी के अंदर, उनको साफ करे, क्लियर करे। अब सी माइंस की तलाश कर उन्हें साफ किया जाएगा। इसके अलावा हॉर्मुज के इलाके में गश्ती के लिए कई P-8A पोसेडोन एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। इन्हें टॉर्पीडो और हार्पून एंटी शिप मिसाइलों से लैस किया गया, यानी इनसे मिसाइल्स दागी जा सकती हैं,
समुद्र के ऊपर उड़कर ईरान की जासूसी भी कर सकते हैं और दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार भी कर सकते हैं। हॉर्मूज के पास अमेरिका के 10 से ज्यादा सर्विलांस ड्रोन्स भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त हॉर्मूज में। अब अमेरिका ने हॉर्मूज की घेराबंदी कर दी है। अमेरिका का यह दावा है कि उसने ईरान की 90% नेवी को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान कॉन्फिडेंट है। उसके कॉन्फिडेंस की वजह है तेज रफ्तार वाली ये बोट्स जो आपके स्क्रीन पर है, जो 90 नॉट्स यानी करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और मिसाइलें भी दाग सकती हैं। ईरान कह रहा है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये क्यों कहा जा रहा है ईरान की मधुमक्खियां, इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे चलती हैं कि इनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है। ईरान की स्पीड बोट्स में सिराज क्लास सबसे खतरनाक है। सिराज 1 की स्पीड करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिराज 1 पर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स तैनात रहती हैं। सब कुछ ईरान की तैयारी है। वहां पर जब बड़े बड़े युद्धपोत आएंगे तो क्या ईरान इनसे हमला करके मुकाबला कर पाएगा? आप सोचिए, तय करिए। ऊंची लहरों के बीच भी इनसे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ईरान की टोंडर क्लास बोट्स भी बेहद खतरनाक है। इन पर C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें तैनात हैं जो 120 किलोमीटर दूर तक वार करती हैं। गाइडेड मिसाइलें भी तैनात रहती हैं। इन पर नेवल गन्स और मशीन गन्स भी तैनात हैं। यानी आप इन्हें सिर्फ स्पीड बोट्स मत समझिए, ये वो हैं जो कि चलते फिरते हथियारों को लेकर चलता फिरता हथियारी बेड़ा है ये ईरान का। बड़े जहाजों का काल इन्हें कहा जाता है। और ये जो स्पीड बोट्स हैं ये झुंड बनाकर हमला करती हैं, तभी इन्हें मधुमक्खियों की तरह कहा जाता है। दुश्मन की डिफेंस लाइन को ये ध्वस्त कर देती हैं। इनकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन पर एंटी शिप मिसाइल्स और रॉकेट्स लगे होते हैं। जुल्फिकार क्लास की भी एक स्टेल्थ बोट्स है। ये दुश्मन की खामोश शिकारी है क्योंकि ये रडार की पकड़ में आती ही नहीं है। ये फास्ट अटैक क्राफ्ट की गई और एडवांस कैटेगरी की है। ये सब कुछ जो ईरान ने तैयार किया है, अब ये स्पीड बोट्स क्या कोई कंपैरिजन कर सकती हैं उस अमेरिकी बेड़े का जो कि हॉर्मूज में है? जरा सोचिए। अब हॉर्मूज पर ट्रंप ने जो नाकाबंदी की है उस पर रूस और चीन क्या मिलकर इस नाकेबंदी को खुलवाएंगे? सवाल ये है, चीन और रूस मिलकर क्या अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं? और क्या वो चैलेंज शुरू हो गया है? चीन ने तो साफ कह दिया कि अमेरिका को उसके जहाज रोकने का कोई हक ही नहीं है और वो उसके रोके रुकेंगे भी नहीं। दूसरी तरफ रूस है, वो भी अमेरिका के खिलाफ फुल एक्शन में है। आपको रूस के प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले दिखा देते हैं कि चीन ने अमेरिका को क्या कहा है। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ आपको बताऊं जिनपिंग और पुतिन। हॉर्मूज स्ट्रेट की नाकाबंदी पर चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून की अमेरिका को सीधी धमकी आई है। ईरान से हमारे रिश्तों के बीच कोई तीसरा देश दखल नहीं दे सकता, ये चीन कह रहा है। ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते जारी रहेंगे। हॉर्मूज में किसी और का नहीं, ईरान का कंट्रोल है। चीन ने दो टूक कह दिया है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये चीन क्या ठेंगा दिखा रहा है अमेरिका को, उसे चैलेंज कर रहा है क्योंकि कह रहा है यहां कंट्रोल तो ईरान का है। हमारे जहाज हॉर्मूज से लगातार आवाजाही कर रहे हैं, हमारे जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से पहले की तरह गुजरते रहेंगे। यानी आप जो करना है करते रहिए, हमारे जहाज तो गुजरेंगे। चीन का 40% कच्चा तेल हॉर्मूज स्ट्रेट से ही गुजरता है। अब चीन का 30% LNG हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरता है। अमेरिकी नाकाबंदी से हॉर्मूज का रास्ता बंद हुआ तो चीन की मुश्किल बढ़ सकती है। इसीलिए बीजिंग ने हॉर्मूज की अमेरिकी नाकेबंदी को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है। चीन के तेवर से साफ है कि अमेरिका ने अगर चीनी जहाजों को रोका तो टकराव की स्थिति बन सकती है। चीन का विदेश मंत्रालय हॉर्मूज को लेकर कैसे सीधे धमकी दे रहा है, जरा देखिए। अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती और घेराबंदी की कार्रवाई केवल टकराव और तनाव बढ़ाएगी, युद्ध विराम को कमजोर करेगी और होर्मुज में नेविगेशन की सुरक्षा को प्रभावित करेगी। यह खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है।
मोदी ट्रंप ने पश्चिम एशिया पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच हॉर्मूज की सुरक्षा पर मंथन हुआ है। ये सुन लीजिए, हॉर्मूज मार्ग को खुला रखने की प्रतिबद्धता ये जाहिर की गई है। तनाव के बीच अहम समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की गई है। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति पर भी ये चर्चा हुई है। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत करने पर यह बात हुई है। वैश्विक साझेदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया गया है। रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और हमने वी रिव्यूड द सब्सटैंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन आवर बायलैटरल कोऑपरेशन, यानी कि हमारे जो आपसी साझेदारी है उसमें किस तरह हम आगे बढ़े हैं, इस पर हमने बात की है। और यह भी कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसे और बढ़ाया जाए, यानी कि वैश्विक मंच पर हमारी साझेदारी को और बढ़ देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और कीपिंग सबसे महत्वपूर्ण है आखिरी सेंटेंस। We have discussed the situation in West Asia and stressed the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure. यानी हमने इस बात पर चर्चा की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहे और सुरक्षित रहे। अब आप सोच लीजिए, एक समय जब अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत में हॉर्मूज की बात हुई है और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात पर प्रतिबद्धता जाहिर की कि हॉर्मूज सुरक्षित भी रहना चाहिए और खुला भी रहना चाहिए। तो ये आपको मैं बता रही हूं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसे चीन ने हॉर्मूज को लेकर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को उनकी दादागिरी की बात कही और उन्हें चेताया है। अब आपको एक खबर देती हूं। हॉर्मूज नाकेबंदी अमेरिका कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए अपना जहाज निकाला है। यह तस्वीर हालांकि पुरानी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, हॉर्मूज से एक जहाज चीन ने अपना निकाल लिया है। अमेरिकी नाकाबंदी जारी है, लेकिन चीन का एक जहाज वहां से निकला है। शिपिंग डेटा के मुताबिक अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित चीन का टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल गया। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद भी वो वहां से निकला है। अब ये सोचिए कि ईरान के साथ व्यापार करने की वजह से टैंकर और उसके मालिक पर संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन कोई नाकाबंदी काम नहीं आई और रूस भी अमेरिका के होश उड़ाने की तैयारी कर रहा है। तो सिर्फ चीन नहीं है, सिर्फ ये एक जहाज चीन का निकला है, ये अपने आप में दिखाता है कि चीन जिस तरह की धमकी दे रहा है वो काम आ रही है और इसीलिए उसका जहाज वहां से निकला है, जबकि अमेरिका ने नाकेबंदी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस क्या कह रहा है वो भी सुनिए। ईरान अमेरिका टकराव के बीच रूस को लेकर अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप की हॉर्मूज नाकेबंदी को बेअसर कर सकता है रूस। ईरान को चुपचाप हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई के लिए सीक्रेट रूट भी एक्टिव किया है। कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की जा रही है। रूस ईरान को इसी रूट से ड्रोन, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी भेज रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम S-300 के कलपुर्जे भी इसी रास्ते से भेजे जा रहे हैं। कैस्पियन सागर में ग्लोबल नेवल निगरानी बहुत कम होती है। कैस्पियन सागर में कोई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं और इसीलिए अमेरिकी या इजरायली नौसेना वहां आसानी से दखल नहीं देती। इस रूट से रूसी हथियारों की सप्लाई के चलते ईरान इस युद्ध में अभी तक टिका हुआ है। दावा है कि रूसी शैडो फ्लीट के जहाज ट्रैकिंग सिग्नल बंद करके कैस्पियन में आवाजाही करते हैं। हर जहाज जो समुद्र में उतरता है उसका एक ट्रैकिंग सिग्नल होता है, उसे आप बंद कर दे तो पता नहीं लगता है और यही वो कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। जहाज ईरानी और रूसी झंडे तले चलते हैं और अक्सर वोल्गा डॉन कैनाल के जरिए काले सागर से भी जुड़ते हैं। अब ट्रंप पर हॉर्मूज खोलने का प्रेशर साथियों की तरफ से बहुत बढ़ गया है। इसमें सबसे नया नाम है सऊदी अरब का। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द से जल्द खोल दिया जाए। एक तरफ तो ईरान उस पर अड़ा था और अब अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है और इसीलिए सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका समुद्री नाकेबंदी तुरंत खत्म करे और ईरान के साथ बातचीत की मेज पर लौट आए। दरअसल सऊदी अरब का मानना है कि अमेरिका की कार्रवाई आग में घी डाल रही है। इससे वो बहुत डरा हुआ भी है क्योंकि इसका सीधा सीधा असर उस पर और बाकी देशों पर भी पड़ेगा। अब ट्रंप पर सऊदी अरब का ये दबाव क्यों है? ईरान के प्रॉक्सी हूती ने बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी दे दी है। अब बाब अल मंदेब स्विज नहर के जरिए एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक मुख्य रास्ता है। यानी एक तो हॉर्मूज पे तनाव, अब वो कह रहा है कि हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। यहां से रोजाना करीब 93 लाख बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरता है।
तो सोचिए, एक तो रास्ता बंद है, दूसरे पर भी अगर संकट आ जाएगा तो इसीलिए सऊदी अरब इससे परेशान है। वो इस रास्ते से वो तेल का बड़ा कारोबार भी करता है। सऊदी को डर है कि अगर हॉर्मुज न खुला तो हूती लाल सागर को टारगेट करेंगे। अगर हूती ने बाब अल मंदेब बंद किया तो सऊदी अरब की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी और इसीलिए ट्रंप पर हॉर्मुज खोलने का एक दबाव सऊदी अरब बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान अमेरिका की जंग किस मोड़ पर खड़ी है। क्या सीज फायर रहेगा या फिर दोबारा दोनों देशों की तरफ से मिसाइल फायर होंगे? क्या दोबारा जंग की तस्वीरें सामने आएंगी? क्या दोबारा खाड़ी देशों में तबाही मचेगी और क्या यह युद्ध अब और विनाशक हो जाएगा? अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वार्ता पर विचार किया जा रहा है। एक समझौते पर पहुंचने के लिए आमने सामने बैठेंगे। बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं है, अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका सहमत भी हो गए। राजनयिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है। डेलीगेशन का स्तर वही रहेगा या नहीं ये तो तय नहीं है, यानी कि वही लोग जाएंगे या कोई और जाएगा। फिलहाल स्थान और समय भी तय नहीं। अधिकारियों के मुताबिक 16 अप्रैल को बातचीत संभव है। 16 अप्रैल यानी 2 दिन बाद। दूसरी बैठक से पहले बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के समझौते को लेकर अब गेंद तेहरान के पाले में है। तो अमेरिका कह रहा है हम तो बातचीत के लिए फिर से तैयार हैं, अब गेंद तेहरान के पाले में है, वो तय करें। अमेरिका ने अपनी सारी शर्तें साफ कर दी हैं, ये जेडी वैंस का कहना है। समझौते पर आगे बढ़ना ईरान पर निर्भर करता है। अगर ईरान समझौते की शर्तें मानने को तैयार है, ईरान को सामान्य देश की तरह ट्रीट करने को तैयार है, तो ईरान का आरोप है कि अमेरिका शर्तें हम पर थोप रहा है और अमेरिका का रुख शुरुआत से ही संदिग्ध रहा है। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान जल्द समझौता करना चाहता है। Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. अब सवाल है कि अगर मीटिंग होगी तो कहां होगी, क्योंकि इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अगली बैठक की लोकेशन को लेकर एक सस्पेंस है। एक बार फिर चर्चा में इस्लामाबाद का नाम आ रहा है। आप देखिए, एक तरफ इस्लामाबाद है और एक तरफ जिनीवा है। ये दो इसलिए मैंने यहां पर आपको दिखा रही हूं क्योंकि ये दो वार्ता के केंद्र हो सकते हैं। अंतिम फैसला तो अमेरिका और ईरान लेंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड के जिनीवा को लेकर भी विचार किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर रखे हुए है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि इस्लामाबाद में बातचीत संभव है। बातचीत के लिए इस्लामाबाद लौट सकता है डेलीगेशन। अगले दौर की बैठक की तैयारी भी पाकिस्तान ने कर दी है। बैठक के समय को लेकर दोनों देशों से बातचीत चल रही है। समय की कमी की वजह से लोकेशन जल्द तय होगी। अब 21 अप्रैल को युद्ध विराम की मियाद खत्म हो रही है। सीज फायर खत्म होने से पहले समझौता करना होगा और समझौता नहीं हुआ तो खाड़ी क्षेत्र में जंग का खतरा बढ़ जाएगा। दोनों देश लोकेशन पर जल्द फैसला लेना चाहते हैं, समय सीमा से पहले अंतिम ड्राफ्ट पर मोहर लग सके। दूसरी तरफ से पाकिस्तानी मीडिया क्या दावा कर रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये खबर पाकिस्तानी मीडिया दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बातचीत को लीड कर सकते हैं। अब वो होगा कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन ये बातचीत अमेरिका और ईरान दोनों के लिए है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यह पाकिस्तान का स्कार्दू है, जहां ईरान के समर्थन और अमेरिका इजराइल के विरोध में रैलियां निकाली गई है। अब आप सोचिए, अगर वार्ता पाकिस्तान में होती है तो वहां दूसरी तस्वीर यह भी होगी, जहां ईरान के समर्थन और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रैली। چه پهلوانی بچه ازانی ذکر جهانی अब बैठक का दूसरा राउंड कहां होगा, इस पर सवाल है। लेकिन इस बीच पुतिन एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच रूस ने ऑफर दिया है। मध्यस्थता करने के लिए रूस ने हाथ आगे बढ़ाया है। तनाव कम करने के लिए पुराना प्रस्ताव दोहराया है। यूरेनियम को अपने पास रखने का प्रस्ताव भी दिया है। रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस क्रेमलिन का बयान आया है। पुतिन ने बातचीत में दोनों देशों को प्रस्ताव दिया था। अभी भी
रूस यूरेनियम को रखने के लिए तैयार है। रूस का यह प्रस्ताव काफी समय से मेज पर है। अगर रूस ये यूरेनियम रखेगा तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, क्योंकि मार्च में भी पुतिन ने ट्रंप को ऐसा ही प्रस्ताव दिया था। सवाल है कि अब पुतिन की बात क्या ट्रंप मानेंगे? वो मध्यस्थ भी बनना चाहते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान का यूरेनियम अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं। सवाल ये भी है कि तमाम कोशिशों के बाद आखिर समझौता हो क्यों नहीं पा रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि दोनों देश संवर्धित यूरेनियम को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या ईरान अमेरिका के बीच फेल हुई पीस टॉक? अमेरिका और ईरान के बीच कहां फंसा है पेंच? क्या दोनों देश अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं? ऐसे तमाम सवाल उठे जब इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता फ्लॉप हो गई। इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों पहले दौर की बातचीत बिगड़ी? इसे लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक यूरेनियम को लेकर दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं थे। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने मांग रखी कि ईरान 20 सालों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोक दे, जबकि ईरान ने इसको लेकर 5 साल का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ये भी चाहता था कि संवर्धित यूरेनियम को ईरान के बाहर निकाला जाए, जबकि ईरान इसे अपने पास रखने और इसे डाइल्यूट करने पर अड़ा है। और यही वो मेन पॉइंट रहा जिसने इस पूरे पीस टॉक को फेल कर दिया। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ईरान पर इकोनॉमिक टेररिज्म की तैयारी का इल्जाम लगाते हैं। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाते हैं तो उसका वैश्विक प्रभाव और खतरनाक हो सकता है। वैंस ने कहा कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार रखने नहीं दिया जाएगा। हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि देखिए, ये वो चीजें हैं जो हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें भी चाहिए। हमें ईरान में समृद्ध सामग्री चाहिए, हमें परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ईरान इस बात पर सहमत होता है तो हम दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। अगर वो सहमत नहीं होता है तो ये उनकी मर्जी है। तो ये तो बात हो गई किस तरह से इस युद्ध में अभी भी अटकलें भी लग रही है, कयास भी और उम्मीद भी। लेकिन एक खबर जो आज बिहार में नई उम्मीद के रूप में आई है। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई। हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह अगले 5 साल होंगे। तो आज की बड़ी खबर, बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार जो कि बिहार में 2 दशक तक सत्ता के केंद्र में रहे, आज नीतीश युग का एक तरह से अंत हुआ और उस अंत के साथ साथ नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जैसे आगे किया, वो तस्वीरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। सम्राट चौधरी को अपनी जिम्मेदारी सौंपते हुए नीतीश कुमार ने न सिर्फ माला पहनाई, उनकी पीठ थपथपाई, बल्कि लोगों से आग्रह किया कि आप भी ताली बजाइए, आप भी सम्राट चौधरी का स्वागत कीजिए। सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, आप भी खड़ा होइए ना भाई। सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, आप भी खड़ा होइए ना भाई। सब कर दीजिए। तो सम्राट चौधरी अब बिहार में अगले सम्राट हैं। अब आपको ये बताऊं कि सम्राट चौधरी को इस कुर्सी पर बिठाने के पीछे रजामंदी दोनों तरफ से थी, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से। पहले ही अमित शाह बोल चुके थे कि मोदी जी सम्राट को बड़ा आदमी बनाएंगे। सुनिए कि चुनाव के समय सभा में क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए
मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। तो गृह मंत्री ने कह दिया था कि मोदी जी सम्राट को बड़ा आदमी बनाएंगे। अब सुनिए कि नीतीश कुमार ने भी इशारों में कैसे बता दिया था कि उनके बाद सीएम कौन बनेगा। बहुत बहुत बधाई, और सब काम हो रहा है, ऐसे सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। ये सब अच्छा करेंगे और आज उसी के लिए पीठ थपथपा रहे थे नीतीश कुमार। अब सवाल है कि आखिर सम्राट चौधरी को ही सीएम क्यों बनाया गया। सम्राट चौधरी को मोदी शाह का खास माना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही उन्हें बिहार के सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके थे। उधर नीतीश कुमार ने भी सम्राट चौधरी का नाम आगे किया था। डिप्टी सीएम के रूप में उनकी सक्रियता की काफी चर्चा बिहार में पहले से ही थी। अब पार्टी में सम्राट चौधरी को एक आक्रामक नेता माना जाता है, और आक्रामकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सामने विपक्ष में आरजेडी है और तेजस्वी यादव को के सामने एक आक्रामक नेता की छवि होना जरूरी है। आक्रामक तेवरों से ही पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रभावित हुए हैं। सम्राट चौधरी की कार्यशैली ने केंद्रीय नेतृत्व का भी दिल जीत लिया। अब धीरे धीरे सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता के केंद्र में आते गए। पहले संगठन फिर सरकार, दोनों में पकड़ मजबूत हुई। सम्राट को आगे करके युवाओं को साधने की भी कोशिश हुई। अब जो लव कुश समीकरण है उसके हिसाब से भी सम्राट चौधरी इसमें फिट बैठ रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी नेता भले ही रहे लेकिन एक लव कुश समीकरण, और यहां अब इनको उसी हिसाब से आगे किया, उसमें भी वो फिट बैठे। सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि और जाति कोयरी ये बड़ा कारण बनी उनके इस सिलेक्शन में। मंत्री और संगठन का अनुभव भी उनका निर्णायक साबित हुआ, और आखिरकार सम्राट चौधरी को नेतृत्व की कमान सौंपी गई। तो आज सबसे बड़ा सरप्राइज यही रहा कि बीजेपी ने कोई सरप्राइज नहीं दिया। बहुत से लोगों ने यह चर्चा की कि शायद कोई नया नाम आ सकता है, लेकिन आखिरकार सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग गई। और अब आपको बताती हूं कि एक राज्य में तो सत्ता कैसे सम्राट चौधरी को मिली है, लेकिन दूसरे राज्य में, बीजेपी शासित राज्य में जहां प्रदर्शन हुआ, वहां मुख्यमंत्री ने कैसे इस पूरे प्रदर्शन को संभाला। आज कौन सा बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया है जिससे नोएडा में प्रदर्शनकारी खुश हुए, और यह भी कि नोएडा की जो हिंसा हुई उसके पीछे क्या कोई साजिश थी। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। सवाल ये है कि अगर साजिश है तो उनका इंटेलिजेंस कहाँ चली गई थी। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। उनका उचित मानते देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है। নওদা জ্বলছে উত্তরপ্রদেশে, আর এখানে যোগীবাবু অটন দিচ্ছে। जो नोएडा में हुआ है बड़ी और गहरी साजिश की दीवार है। उसमें कुछ शरारती तत्व हैं जो विपक्षी पार्टियों से तालमेल रखते हैं। तो तस्वीरें नोएडा में हिंसक हुई प्रदर्शनकारियों की दिखाना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले जो कल तस्वीरें आई और आज की तस्वीरें देखिए। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो दिखा रही थी कि कैसे नोएडा में फैक्ट्री में गेट खोलकर तोड़कर लोग अंदर घुस गए। सेक्टर 80 में पुलिस पर पथराव हुआ। सेक्टर 121 में भी प्रदर्शन और पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने हिंसा मामले में अब तक 396 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। कल कैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ एक इमारत के लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। ये तस्वीर देखिए, फुल दिखा दीजिए इसे प्लीज, और जमकर तोड़फोड़ करती है। अब इन तस्वीरों के बाद खबर ये आई कि क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। उस साजिश को लेकर एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। उस ऑडियो में ये साफ नजर आता है कि क्या लोगों को यहाँ बुलाया गया। जरा ये भी सुनिए। ठीक है, हमारे कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठी चार्ज दोबारा से पुलिस वालों पे होनी चाहिए। ठीक है, हमारे बहुत बहन भाई घायल हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी सुबह आने की कृपा करें। ठीक है, कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठी चार्ज दोबारा से पुलिस वालों पे होनी चाहिए। ठीक है, हमारे बहुत बहन भाई घायल हुए हैं। ठीक है, की जांच हो रही है कि कौन लोग हैं जो इस तरह से मैसेज सर्कुलेट कर रहे थे और हमें और बाकी लोगों को भड़का रहे थे कहकर के इकट्ठा हो जाइए और हमें बदला भी लेना है, भाई बहन हमारे घायल हुए हैं।
इसकी जांच हो रही। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा आदेश दिया। न्यूनतम मजदूरी 21% बढ़ाने का ऐलान कर दिया उन्होंने यूपी में। अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपए और अर्धकुशल मजदूरों के लिए 15,059 रुपए, कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपए तय किए। अब श्रम संहिता लागू होने के बाद और इजाफा संभव है। वेतन के अलावा बोनस और भत्ते का भी उन्होंने आश्वासन दिया है और महिला श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने आज श्रमिकों को यह तोहफा दिया है और इसे उस पहल के रूप में भी देखा जा रहा है कि जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की तो मुख्यमंत्री ने फ्रंट फुट पर आकर उसका हल और समाधान निकाला है। माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।